Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today we are starting the fourth compound from ICSE 10th, that is called ammonia. ठीक है? So let's start. Ammonia. Everyone knows ammonia means NH3, and how the structure looks like NH, and over here one lone pair is there. So this is how it looks like, and that is what we are going to study first. अब सबसे पहले, as I always teach, it is going to be your introduction. अब introduction में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले what is it called? It's called alkaline air. Why it is called alkaline air? Because it is basic in nature. So basic है. पहली बात तो अमोनिया को अगर पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन मेक इट आउट. और जो 12th क्लास में है, ऑफ कोर्स दिस इज फॉर 10th ICSE, बट जो 12th क्लास में एवरीवन नोस, जिसके पास भी लोन पेयर होता है, they are also called a base. ठीक है? So that is first thing we all have to know. Second, we are going to talk about its occurrence. कहाँ पे मिलता है? अमोनिया की जब बात करेंगे, so you are going to find it is present in free state as well as combined state. अब free state में अमोनिया कहाँ पे होता है? It is present in air. It is present in natural water, right? Third thing, it is present in nitrogenous matter. Nitrogenous matter decayed in the absence of air. वहां पे भी आपको मिलेगा. और mainly you can say it is being present mainly wherever putrefying bacteria or mainly the substances are going to be decomposed down. तो जहां पे जो फाउल स्मेल आती है वहां पे अमोनिया कैन बी प्रेजेंट. बट ये 3 मेन है जो आपको याद रखने. उसके बाद आते हैं इसके कंबाइंड स्टेट में. कंबाइंड स्टेट में कहां पे होता है भाई ये? Combined state you are going to find it is present in ammonium salts. Ammonium salts के अंदर it is not present directly as ammonia, but ammonium salts के अंदर में ये present होता है. ठीक है? Second thing we all have to know, it is also present in ammoniacal liquor. It is also present in some ammoniacal liquor, means mainly the compounds which are having some water solution. How you get it? Obtained by dry distillation. मतलब heating at a very high temperature in the absence of air. So dry distillation of coal. तो coal को जब हम लोग heat करते हैं at a very high temperature in the absence of air, that is called dry distillation. तो ये आपकी 2 states हो गई हैं. So that is what you have to know with respect to पहला इंट्रोडक्शन का 2 पॉइंट्स. तो इंट्रोडक्शन में याद रखो एल्केलाइन एयर तो इजी है. अकरेंस आपको याद रखना है. फ्री स्टेट में कहां पे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, एंड ऑफ कोर्स इन कंबाइंड स्टेट अमोनियम सॉल्ट्स, दैट कैन बी अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, एंड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिकल लीकर. लीकर क्या होता है? कि मेनली द अमोनिकल कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म और लिक्विड फॉर्म. ये ज्यादातर आपको मिलता है फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल. व्हाट इज ड्राई डिस्टिलेशन? हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन. और कोल सबको मालूम है. कॉपी डाउन. नाउ वी गो फॉर द थर्ड पार्ट. इन इंट्रोडक्शन ही डालता हूं मैं, एंड दैट इज यूजेस. अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूजेस, तो सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चर ऑफ. क्या क्या मैन्युफैक्चर के काम करने आता है भैया? मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी थिंग्स. यू कैन मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ इट. ठीक है. सबसे पहले
हाइड्रोजन का सोर्स है. सो नाइट्रोजन and hydrogen can be obtained from ammonia first of all. Secondly, we all have to know we have used it in Ostwald's process. क्या होता है Ostwald's process? Industrial manufacture of ammonia. याद है तो ये रिएक्शन था 4NH3 plus 5O2 is going to give you the 4NO plus 6H2O. First step towards manufacturing of nitric acid. So that is the second thing we all have to know. Third thing, you can use it as explosives also. HCl, sorry, ammonia. So we can use it as explosives also. And explosives में आपको नाम याद रखना है ammonium nitrate. Of course ये अमोनिया का कंपाउंड है. So we all have to know that also. चौथा, आप इसको मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा के लिए भी काम कर सकते हो. व्हाट इज बेकिंग सोडा? NaCO3. और मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग पाउडर भी काम आ सकता है. यस. व्हाट इज वॉशिंग पाउडर? Na2CO3.NH2. तो यूजेस आर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो आपको मालूम होने चाहिए. सेकेंड यूज है इसका फर्टिलाइजर्स. जो भी आपका अमोनिया का फर्टिलाइजर्स है अमोनियम कंपाउंड का, दे ऑल कंटेन समवेयर अमोनिया इन इट. तो हो गया अमोनियम सल्फेट, फॉर्मूले आ गए तो इजी है. अमोनियम फॉस्फेट, ये हो गया आपका अमोनियम फॉस्फेट. यूरिया, फॉर्मूला याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, क्योंकि 10th वालों को ये फॉर्मूले यूरिया का याद नहीं रखना है. सो दैट इज सेकेंड फेमस यूज which everyone has to know it very very well. ठीक है. उसके बाद आते हैं, we all have to know the third use, जहां पे हम बोलेंगे as a smelling salt. as a smelling salt किसको बोलते हैं? as a smelling salt बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट को, याद रखना. ओके. अभी ये क्या करता है? मेनली whenever, right, it has a very very pungent smell. So smelling salt has a pungent smell which can revive. Okay, so which can revive a fainted person. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. सो दिस इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोनेट एंड इट इज कॉल्ड अ स्मेलिंग सॉल्ट. पंजेंट स्मेल होती है. सो व्हेन इट डिकम्पोजेस इट हैज अ प्रॉपर्टी टू गिव यू अ पंजेंट स्मेल. प्रॉपर्टी व्हेन डिकम्पोजेस डाउन गिव्स यू अ पंजेंट स्मेल एंड इट कैन रिवाइव अ फेंटेड पर्सन ऑल्सो. इतनी गंदी स्मेल होती है कि खड़ा हो जाएगा आदमी. ठीक है. तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ अमोनिया. कॉपी करिए प्लीज. देन वी गो टू द यूजेस ऑफ लीकर अमोनिया. तो पहले यूजेस ऑफ लीकर अमोनिया करते हैं और यहां पे करेंगे यूजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया. दोनों को ध्यान से देखना. नाउ व्हाट इज लीकर अमोनिया? पहले लीकर अमोनिया होता है अमोनिया को अगर पानी में डुबोया, देन यू गेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज कॉल्ड योर लीकर अमोनिया और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया. याद रखना है. लीकर और लिक्विड में कंफ्यूज होते हैं सब लोग. नाउ व्हाट इज लिक्विड अमोनिया? अमोनिया गैस है. इसको अगर मैं कंडेंस करता हूं, right, then I am going to get ammonia in the form of liquid and that is called liquid ammonia. I hope दोनों में डिफरेंस सबको क्लियर हुआ. एक को पानी में डाला तो वो डिसॉल्व होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और एक को आपने कंडेंस किया एट अ लो टेम्परेचर. ठीक है. सो लो टेम्परेचर पे आप इसको कंडेंस कर दो. अब देखते हैं यूजेस ऑफ लीकर अमोनिया क्या है. पहला है फॉर cleaning window panes.
सो जो आपकी खिड़कियां होती है, कांच होते हैं, उसको आप किससे क्लीन करते हो? याद करो, ब्लू कलर का जो लिक्विड आपके घर पे होता है. सो दैट इज फॉर क्लीनिंग विंडो पेन्स, योर पोर्सिलेन, दैट मीन्स क्या बोलते हैं अपने पोर्सिलेन आइटम्स. पोर्सिलेन आइटम्स को क्या बोलेंगे? पोर्सिलेन आइटम्स आर मोर रिलेटेड टू योर टाइल्स जैसे आइटम. देन सेकेंड इट इज इमल्सिफिकेशन और डिसॉल्विंग. इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है. और डिसॉल्विंग फैट्स, ग्रीस. फैट्स और ग्रीस को डिसॉल्व करने के लिए आते हैं. देयरफॉर यूज्ड टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स. तो ये इसका एक और अच्छा यूज है जो आपको मालूम होना चाहिए. फॉर क्लीनिंग विंडो पेन्स, पोर्सिलेन आइटम्स मीन्स मेनली रिलेटेड टू योर कोई भी स्टेन वगैरह है आपके टाइल्स वगैरह पे, वहां पे भी निकाल सकते हो. एंड इमल्सिफिकेशन मतलब डिसोल्यूशन या डिसॉल्विंग फैट्स, ग्रीस, कुछ भी लगाओ कपड़ों पे, दैट यू कैन इजीली रिमूव इट. ठीक है. देन यू कम टू दिस साइड. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, भूलना नहीं है. एज अ रेफ्रिजरेंट मतलब किसी चीज को ठंडे करने के काम आता है. दैट इज कॉल्ड एज अ रेफ्रिजरेंट. क्यों? इसके 3 रीजंस है. एज अ रेफ्रिजरेंट सिंस, पहला रीजन, इट इज हाईली वोलेटाइल, मतलब आराम से इवापोरेट हो जाता है, आराम से हवा में उड़ जाता है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इट हैज हाई लेटेंट heat of vaporization. So latent is the hidden heat of vaporization. Conversion from liquid state to the vapor state is very very high. तो उसको बोलते हैं latent heat of evaporation. And third point, easily liquefies at high pressure and low temperature. तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस है व्हाई इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट. ठीक है. तो रेफ्रिजरेंट ये 3 रीजंस के कारण होता है. एंड यू आर गोइंग टू फाइंड कि अमोनिया लिक्विड से अमोनिया गैस बनने के लिए somewhere 5.7 kilocalories heat is being absorbed. याद रखना. And that is responsible for its high latent heat of vaporization. So, जब आप बात कर रहे हो the introduction part, then we all have to know introduction में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए. सबसे पहले इसको बोलते हैं एल्केलाइन है. दूसरा पार्ट आपको याद रखना है that what are the different forms और free state and the combined state में कैसे मिलता है. ठीक है, वो आपको याद रखना है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता है. थर्ड यूजेस में स्मेलिंग सॉल्ट याद रखना है आपको. एक व्हाट इज लीकर अमोनिया एंड व्हाट इज लिक्विड अमोनिया, दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए आपको अच्छी तरह से. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लिक्विड अमोनिया यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों यूज होता है एज अ रेफ्रिजरेंट? हाईली वोलेटाइल है. वोलेटाइल मतलब आराम से इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. ठीक है. तो आराम से वोलेटाइज हो जाता है. हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो you are going to find as it has a high latent heat of vaporization, some amount of heat is going to be absorbed. तो उसके कारण आइस फॉर्मेशन या रेफ्रिजरेंट के जैसे यूज करना इजी है. और इसका जो लिक्विफेक्शन पॉइंट है दैट इज ऑल्सो एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आराम से हो जाता है. सो दैट इज अबाउट द यूजेस. लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट. नाउ लेट्स गो टू लैबोरेटरी प्रिपरेशन of ammonia.
Now how will you prepare ammonia gas in the laboratory? तो पहला पॉइंट देखते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में आपको अमोनियम सॉल्ट लेना है, कोई भी ट्रिक देख लो, और उसको ट्रीट करना है एल्केली से। तो आपको मिलेगा क्या, यहां पे मिल जाएगा आपको मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ठीक है, और ऑफ कोर्स हीटिंग करने पे। तो फॉर एग्जांपल हमने अमोनियम सॉल्ट लिया, अमोनियम सल्फेट, और इसको ट्रीट कर दिया विथ NaOH। तो पहला तो लिखा है मेटेलिक सॉल्ट मिलेगा। व्हाट इज मेटेलिक सॉल्ट? NaCl मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा, नहीं यहां पे सल्फेट है, तो यू आर गोइंग टू गेट Na2SO4 प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। अब फॉर एग्जांपल आपने ले लिया सॉल्ट कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड प्लस, इस बार ले लिया मैंने CaOH ट्वाइस, ये सबसे बेस्ट मेथड है। हीट किया, Ca और क्लोरीन है, इसका मतलब CaCl2 पक्का, प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। ये सबसे बेस्ट मेथड पकड़ा जाता है, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। एल्किलीज जो है आपके पास तीन ही है, आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो NaOH, आप यूज कर सकते हो KOH, और आप यूज कर सकते हो CaOH ट्वाइस। उसमें सबसे बेस्ट है CaOH ट्वाइस। रीजन है, पहली बात, CaOH ट्वाइस इज चीप, एंड रीजन नंबर 2 दैट इट इज नॉन डेलिक्वेसेंट। क्या मतलब होता है नॉन डेलिक्वेसेंट का? डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। जैसे कि NaOH है, अगर NaOH आपने लिया, ठीक है, ये आपका NaOH का पाउडर है, इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और मॉइस्चर को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा NaOH, ये उसमें डूब जाएगा। इसको बोलते हैं डेलिक्वेसेंसी। हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, डेलिक्वेसेंस है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया और सॉलिड से क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, उस पानी में ही घुल गया, डूब गया, दैट इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंस। तो ये नॉन डेलिक्वेसेंट है, और ये रिएक्शन इसके लिए बेस्ट है, राइट? दो रीजन बता दिए, चीप है और नॉन डेलिक्वेसेंट है। देन वी ऑल हैव टू नो कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, दिस इज सबलाइम इन नेचर। सो इन दोनों का जो आप रेशियो लेते हो, द रेशियो हैज टू बी टेकन समवेयर हाइयर। तो रेशियो आपको इन दोनों में इसका रेशियो ज्यादा लेना है, समवेयर यू कैन से 1:3, या और भी ज्यादा ले सकते हो। क्यों? टू कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड बाय sublimation, because it is sublime in nature। तो इसको क्यों नहीं ज्यादा ले लेते? इसको इसलिए ज्यादा नहीं लेते बिकॉज अमोनियम क्लोराइड कंपेयर टू स्लेक्ड लाइम इज एक्सपेंसिव, सो दिस इज बेटर ऑप्शन। इसको ज्यादा ले लो, ज्यादा लोगे तो फटाफट इसके साथ रिएक्ट होएगा। सो इट कॉम्पेंसेट और काउंटरएक्ट द लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच एवरीवन हैज टू नो, ठीक है? फिर याद रखो, यहां पे हम एक अमोनियम सॉल्ट कभी नहीं यूज करते। अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। रीजन नंबर 1, एक्सप्लोजिव होता है भाई। रीजन नंबर बी, डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग इनटू, ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक हो जाएगा? N2O,
पहले वाटर निकाल दो। जब भी कोई चीज हीट होती है पहले पानी निकाल दो। कितना पानी निकला? वाटर 2H2O, तो वाटर निकल गया और लाफिंग गैस को डिकम्पोज करने पे ये दो प्रोडक्ट्स देते हैं। दैट्स व्हाई अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। देन क्वेश्चन आ सकता है हाउ इट इज कलेक्टेड। याद रखो अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड displacement of air. So downward displacement of air से क्यों करते हैं भाई? Because vapor density of ammonia कितना हो गया भाई? 14 और 3 17 divided by 2 8.5 ही है। And what is the vapor density of air? 14.4. So who will go down? जो heavy होता है वो नीचे जाता है। हवा will go down and ammonia will go up. So ammonia gas is collected by downward displacement of air. Why not water? Because ammonia gas is highly soluble in water. अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो उसमें से 702 लीटर अमोनिया उसके अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा। 1 volume of water can dissolve 702 volumes of ammonia, and that's why you are going to find कि we don't use this. सबको clear हुआ? तो the method which we are using it is downward displacement of air, which everyone has to know. अब अगर आपको laboratory preparation of ammonia में बोला ये अमोनिया गैस ही है, वो कंफर्म करो कि ये अमोनिया गैस ही रिलीज हुई है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कि अमोनिया गैस को हम लोग HCl गैस के साथ मिक्स कर देंगे। जो गैस लाइट है उसको एक लोअर जार में रखेंगे। चलो ये पहले लिख लो, इसके बाद समझाता हूं कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ अमोनिया। फर्स्ट कॉपी डाउन। नाउ लेट्स गो टू द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ अमोनिया। कंफर्मेटरी टेस्ट एज आई वाज टेलिंग, कंफर्मेटरी टेस्ट। अब आपको अमोनिया ही मिला है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखो 2 जार लो, एक जार में आपकी ऑफ कोर्स अमोनिया मिली हुई है, तो 2 जार लो। लोअर जार में आप डाल दोगे अमोनिया और अपर जार में आप डाल दोगे HCl गैस। क्यों ऐसा? अमोनिया लाइट है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, HCl हैवी है तो वो नीचे की तरफ आएगी और दोनों के बीच में रिएक्शन होएगा। अमोनिया गैस इज अ बेसिक गैस, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। HCl गैस इज एसिडिक गैस, और दोनों जब रिएक्ट होते हैं यू गेट डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विच इज सॉलिड। सो डेंस वाइट फ्यूम्स मिलते हैं आप। तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। अब अमोनिया गैस जब आप कलेक्ट करते हो उससे पहले इट इज बीइंग आल्सो पास्ड थ्रू ड्राइंग टावर। ठीक है, अब ये ड्राइंग टावर से अमोनिया गैस क्यों पास ऑन करते हैं? ड्राइंग टावर में होता है आपका क्विक लाइन। क्या होता है क्विक लाइन? CaO। क्या करता है ये? ऑफ कोर्स ड्राइंग टावर में है तो इट इज गोइंग टू बी योर ड्राइंग एजेंट। क्या करता है? एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। डज इट रिएक्ट विद अमोनिया? नो। व्हाई? बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड अमोनिया इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, तो दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाई conc H2SO4 is not used, or why P2O5 is not used, or why fused calcium chloride is not used। ये तीनों भी अच्छे एजेंट्स हैं। किसके? These 3 are also very good drying agents। तो याद रखो अगर अमोनिया को आपने
पास किया विथ H2SO4 विच इज कॉन्सेंट्रेटेड, तो दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, अमोनियम सल्फेट मिल जाएगा भाई। एक एसिडिक है एक बेसिक है, ये एसिड है ये बेस है। P2O5 के साथ रिएक्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर, यू आर गोइंग टू फाइंड अमोनियम फॉस्फेट मिल जाएगा आपको। और अमोनिया गलती से आपने पास ऑन कर दिया विथ फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, तो एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है, वी गेट CaCl2.8NH3, दोनों जुड़ गए इसलिए इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट drying tower, very important, why quicklime is only used, because quicklime calcium oxide is going to absorb the moisture, basic in nature, so it does not react with ammonia. Why not conc H2SO4 P2O5 and molten or fused calcium chloride? ये रीजन लिखे, ये रिएक्ट हो जाएगा तो फायदा क्या है, अमोनिया ही आपकी यूज हो गई, जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हो वही नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो with respect to the laboratory preparation. Let's see और points क्या है इसके अंदर। Now one more question which can be asked, that why round bottom flask जहां पे reactants रखते हैं हम लोग is being kept inclined। तो अगर आप इसका डायग्राम देखोगे आपके विराट दलाल में, तो डायग्राम में थोड़ा सा स्लांटिंग रखा है, फ्लास्क को ऐसे झुका के रखा हुआ है। रीजन वी ऑल नो, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले हमको मालूम है कि अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट होता है किसके साथ, इट रिएक्ट्स विथ द CaOH ट्वाइस बेस या एल्केली, क्या देता है आपको, आपको देता है CaCl2 प्लस वाटर प्लस अमोनिया ऑन हीटिंग। तो ये दोनों मेनली वेपर्स फॉर्म में आगे बढ़ती है। अगर आपने फ्लास्क को सीधा रखा होता तो ये जो वाटर वेपर है, राइट, ये वाटर वेपर आपकी फ्लास्क में ऊपर जाती, वाटर वेपर would have gone up and drop down and may damage the round bottom flask, उसको शायद क्रैक कर दे। इंक्लाइंड पोजीशन में रखने से क्या फायदा होता है, इंक्लाइंड पोजीशन में रखने से वाटर वेपर formed may not trickle down back into RBF. What is RBF? Round bottom flask में it is not going to trickle down और trickle back, down नहीं लिखते, trickle back. So it is not going to trickle back into the round bottom flask, and that's why you are going to use always in the inclined position. तो आई होप सबको क्लियर हुआ ये। अभी एक और लेबोरेटरी प्रिपरेशन का मेथड है जिसको हम पढ़ेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मेटल नाइट्राइड्स। मेटल नाइट्राइड्स, देखो अगर आप एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करोगे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स तो आपको मिलेगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। और अगर आप कैल्शियम को रिएक्ट करोगे नाइट्रोजन के साथ तो यू विल गेट Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। तो मेटल नाइट्राइड्स इनको बोलते हैं, राइट। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, नाइट्राइड्स का मतलब सबको मालूम है, इट इज N3 माइनस। नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए, दिस इज अ रेडिकल, ट्राई नेगेटिव आयन। अब नाइट्राइड ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते बिकॉज नाइट्राइड्स आर वेरी एक्सपेंसिव
दैट्स वाई वेरी सेल्डमली यूज्ड। ऑप्शन नहीं होएगा तो ही यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मैग्नीशियम नाइट्राइड और इसको वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, क्या होएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको, एंड अलोंग विद दैट यू आर गोइंग टू गेट अमोनिया गैस। बाकी इसका कलेक्शन, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, ऑल द थिंग्स आर वन एंड द सेम ओनली। ये जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड योर, इट प्रेसिपिटेट्स आउट। एल्यूमिनियम लेते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, और अगर आप कैल्शियम नाइट्राइड लेते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। इज इट क्लियर? सो दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन। जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। प्रिपरेशन में वी ऑल हैव टू नो कि प्रिपरेशन में आप मेनली अमोनिया सॉल्ट लेते हो और उसके साथ कोई एक एल्केली लेते हो। मेन एल्केली कौन सा लोगे? CaOH ट्वाइस, बिकॉज इट इज चीप एंड नॉन डेलिक्वेसेंट इन नेचर। और इसके जो आपके गिव रीजंस पार्ट है उसको बहुत अच्छी तरह से करना, जो मैंने पॉइंट वाइज आपको बताए हैं। नहीं समझ में आए वापस वीडियो रिपीट करो और देखो। ये वाला मेथड खाली आपकी नॉलेज के लिए है और आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेथड तभी यूज होएगा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? सो लेट्स गो टू नाउ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ओके, लेट्स गो टू द लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में याद रखो, आप लेते हो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ड्राई होनी चाहिए। फिर आप लेते हो हाइड्रोजन गैस ऑफ 3 वॉल्यूम्स, ये भी आपकी ड्राई होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, याद रखना, रिएक्शन इज नॉट इरिवर्सिबल, सीधा एरो नहीं है, रिवर्सिबल है। प्लस हाइड्रोजन के साथ आपको मिलता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस एंड हीट इज इवॉल्व्ड। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो याद रखो, दिस इज योर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस reacts with 3 volumes of hydrogen gas and you get 2 volumes of ammonia gas. ठीक है? Both the gases should be free from impurities. CO है impurities, H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब इंप्योरिटीज से फ्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका नाम है फाइनली डिवाइडेड आयरन। ठीक है? और उसके साथ मोलिब्डेनम यूज होता है, जो बताऊंगा, प्रोमोटर का नाम है। यहां पे कोई टेम्परेचर यूज होता है 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर यूज होता है 200 टू 900 एटमॉस्फेयर। सब कुछ एक साथ याद रहना चाहिए, जैसे सर ने लिखा है, एवरीथिंग यू हैव टू नो। अब ये इंप्योरिटीज से फ्री क्यों नहीं चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? अगर इफ इट इज नॉट फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड, they can poison the catalyst. What is the meaning of poison the catalyst? Decreases the effect of a catalyst. अब catalyst तो सबको मालूम है क्या होता है। Catalyst is a substance which increases the rate of a reaction. जो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड को फास्ट कर देता है, क्योंकि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में सब कुछ फास्ट होना चाहिए, तो इसलिए आप फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज कर रहे हो। और उसको हेल्प कौन कर रहा है? उसको हेल्प कर रहा है प्रोमोटर। प्रोमोटर का नाम क्या है भाई? मोलिब्डेनम। याद रखना नाम, मोलिब्डेनम, MO बोलते हैं इसको। ठीक है? अब प्रमोटर और कैटलिस्ट क्या होता है? फुटबॉल सब देखते हो, फुटबॉल में जो आपका रेफरी होता है वो क्या करता है? वो गेम को फास्ट रखता है, येलो कार्ड दिखाता है, रेड कार्ड दिखाता है, बराबर है। कोई भी नाटक करता है उसको फील्ड के बाहर भेज देगा। ऑल दैट इज अ कैटलिस्ट। 90 मिनट्स का गेम है, आप देखोगे 105 मिनट के अंदर खत्म होता है, 15 मिनट और पकड़ो, हाफ टाइम को छोड़ दो तो अभी 5, 7, 8 मिनट ज्यादा।
अच्छा रेफरी होएगा तो और फास्ट खिलाते हैं। और उसको जो हेल्प करते हैं वो होते हैं लाइनमैन। लाइनमैन आर प्रमोटर्स विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ अ catalyst. So what is promoter? Promoter is increases the efficiency of a catalyst. याद रखना। प्रमोटर आप और भी यूज कर सकते हो, जैसे कि 1% Al2O3 या 1% K2O, बट ज्यादातर मोलिब्डेनम ही आपको याद रखना है। दिस आर ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं मिला तो ये चाहिए। दूसरी चीज याद रखो, ये नाइट्रोजन गैस आपको मिलती कहां से? तो ये नाइट्रोजन गैस आपको मिलती है एयर से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर लिख लेना। नाइट्रोजन गैस जो आपको मिलती है वो मिलती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से। एंड हाइड्रोजन जो है वो कहां से मिलेगी? सो हाइड्रोजन आपको मिलती है, हाइड्रोजन गैस यू गेट इट फ्रॉम वाटर गैस। क्या होता है वाटर गैस भाई? 9th क्लास में पढ़ा था वाटर गैस क्या होती है? CO+H2 को बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस विच वी डिड वाज वेरी फेमस बॉश प्रोसेस। ये भी मालूम होना चाहिए ये सोर्सेज आपको मिलते हैं कहां से। अगला क्वेश्चन आता है कि आपका टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। याद रखना ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब दिस विल फेवर लो टेम्परेचर। याद रखना ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलता है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? ली चैटलियर्स बोलता है एस द रिएक्शन is exothermic, so forward reaction is favored at low temperature। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम भी होगा then the reaction becomes very slow, rate of the reaction becomes very slow, and due to that you take some optimum temperature। ये किसने बताया भाई? ये बताया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलता है। जब भी कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं हमको। तो टेम्परेचर आप ऑप्टिमम लेते हो, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्चुअली लो टेम्परेचर इज गोइंग टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि हमको तो अमोनिया चाहिए। हमको क्या इंटरेस्ट है लेफ्ट में? प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट हमको हाई यील्ड चाहिए, हाई प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको लो टेम्परेचर फेवर करना पड़ेगा। बट बहुत लो भी रखना डिफिकल्ट था, तो उन्होंने एक ऑप्टिमम ऐसा टेम्परेचर कर दिया जिसमें इसकी यील्ड मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा मिले। फिर प्रेशर इतना क्यों लिया भाई? प्रेशर कैसे बताया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ने? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलता है रिएक्टेंट्स में कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है, ये भी मालूम होना चाहिए, राइट? इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट्स, हाई प्रेशर favors the forward reaction। अब समझते हैं इसका मतलब। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स है 1 + 3 4, नंबर ऑफ मोल्स आर 4। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स 2 ही है। क्या लिखा है मैंने? इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इसको मोल्स बोलते हैं आगे वाले को। That means high pressure allows the reaction to go in the forward direction। इसलिए pressure is very very high, 200 to 900 atmosphere, right? And of course 200 to 250 में ये पूरा गेम हो जाता है, बट ये एक रेंज दी है जिस रेंज में हेबर्स प्रोसेस पूरा कैरिड आउट होता है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ योर हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस में और क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए देखते हैं अपने हेबर्स प्रोसेस में। नेक्स्ट थिंग वी ऑल हैव टू नो
is that how ammonia gas is going to be separated from nitrogen and hydrogen. तो ये भी आपको बताता हूं, पहले इतना कॉपी कर लो और एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लो. वापस देख लेते हैं. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया देता है. एरो के ऊपर सब कुछ आना चाहिए इसलिए बड़ा लिखा है. टेम्परेचर याद रखो, प्रेशर याद रखो. कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम. 2NH3 प्लस ट्रायंगल. ट्रायंगल मींस एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक जब भी रिएक्शन होता है रिवर्सिबल है तो लो टेम्परेचर अलाउज द रिएक्शन टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and number of moles of products are less than the number of moles of reactants, then high pressure favors the reaction to proceed in forward direction. Catalyst क्या होता है वो समझा दिया आपको. प्रमोटर क्या होता है वो समझा दिया. कहां से आपको नाइट्रोजन मिला, कहां से आपको हाइड्रोजन मिला. नाइट्रोजन लिखा नहीं है बट यू गेट इट फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम वेयर यू गेट हाइड्रोजन लिखा है फ्रॉम वाटर गैस, दैट इज कॉल्ड CO plus H2 वॉश प्रोसेस से. Bosch वेरी फेमस मशीन भी है उसकी, दैट इज डिश वॉशिंग. ठीक है. फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होना चाहिए ये दोनों गैस, अदरवाइज आपका कैटलिस्ट जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है वो बेकार हो जाएगा. डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. प्रमोटर आप मोलिब्डेनम भी यूज कर सकते हो जो उसको और अच्छा करता है कैटलिस्ट को, इसका ऑपोजिट है वो. एंड ऑफ कोर्स आप ये दोनों में से भी कोई कैटलिस्ट यूज कर सकते हो. ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल आपको टेम्परेचर और प्रेशर बताता है कि लो लोगे या हाई लोगे, एंड that decides that in which direction the reaction will proceed. So please कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आपको अमोनिया गैस तो मिल गई, बट सबको मालूम है अमोनिया गैस मिलती है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो वो मिली तो आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से. अब ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो रिएक्ट होता नहीं है, तो कुछ अनरिएक्टिव मोल्स भी होंगे. तो जब आपका अमोनिया बाहर निकलता है तो उसके साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है, बिकॉज ऑल आर गैसेस. सो हाउ टू सेपरेट अमोनिया फ्रॉम अनकंबाइंड गैसेस. कौन है अनकंबाइंड गैसेस? N2 plus H2 जो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुई है. तो दो मेथड्स है. अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर. बहुत इजी पॉइंट है. वाइल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल. तो गैस को पानी में पास कर दो, अमोनिया तो आराम से पानी में डिसॉल्व हो जाएगी. व्हाट अबाउट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन? इल्ला होएगी नहीं. तो ये तो पहला वे हो गया सेपरेट करने का. दूसरा, अमोनिया गैस आराम से लिक्विफाई हो जाती है. मतलब गैस से क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है एट -33 डिग्री सेल्सियस. कितना? -33 डिग्री सेल्सियस, and that pressure is only 8 atmosphere. -33 डिग्री सेल्सियस and 8 atmosphere पे ये आराम से लिक्विफाई हो जाती है. What about नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की बात करेंगे तो -196 डिग्री सेल्सियस एंड दिस वन इज -253 डिग्री सेल्सियस के आजू बाजू. राइट. liquefy, difficult, easy. You don't need a very strong freezer to liquefy it. यहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस एंड -253 डिग्री सेल्सियस चाहिए. प्लस दे नीड हाई प्रेशर ऑल्सो. प्रेशर भी वहां ज्यादा नहीं चाहिए, खाली 8 एटमॉस्फेयर चाहिए, which is not very high, right? And that is the way you can separate down ammonia from नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो रिएक्ट नहीं हुए. जो रिएक्ट हो गए वो तो अमोनिया में कन्वर्ट हो गए, जो रिएक्ट नहीं हुए. तो आज हमने अमोनिया का एक बड़ा पार्ट कंप्लीट किया, दैट इज हेबर्स प्रोसेस, लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड इंट्रोडक्शन. अब बचा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑफ कोर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फाइनली द टेस्ट फॉर अमोनिया गैस. तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में.
where we are going to complete the ammonia gas. So see you in my next lecture.